پریڈ گراؤنڈ لیے چلتے ہیں جہاں پر آصف علی زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ رحمان رحیم، میرے پاکستان سے آئے ہوئے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بھٹو صاحب کے ساتھیوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستوں، بھٹو صاحب کی شان میں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، پر بلے شاہ نے کچھ کہا ہے۔ بلے شاہ نے کہا ہے کہ بلے ایسی مرنا کونی گور پیا کوئی ہور۔ تو بھٹو صاحب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شہیدوں کی شہادت میں یقین رکھتے ہیں، اور شہید کہیں بھی مرتے نہیں، شہید صرف پردہ پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرف سے آج مجھے یقین ہے کہ بھٹو صاحب، بی بی صاحبہ اور ہمارے تمام شہید آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمیں جو 5 سال بڑی مشکل سے جو ہم نے پائے، بی بی کی شہادت دے کے ہم نے پائے، ہم نے وہ سب کام کیے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدے کیے تھے، وہ سب وعدے ہم نے نبھائے۔ ہم نے بلوچستان کو بلوچوں کا حقوق دیا، ہم نے پختونوں کو ان کی شناخت دی، اور ہم نے پاکستان کو ایک نئی شکل دی، جس کا مطلب ہے کہ ایسا پاکستان جس میں غریب ہو، عورت ہو، جو انسان ہو کہ جو ریٹائر ہو گیا ہو، فوجی ہو یا عام سویلین ہو، ان کی تنخواہیں ہم نے بڑھائیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کیے۔ ہم نے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا اور دنیا میں جمہوریت کا ایک رنگ نمایاں دے دیا۔ اس لیے کہ میں جب جا کے UN میں کھڑا ہوا تو وہاں میرے ہاتھ میں بی بی کی تصویر تھی اور میں لہرا رہا تھا۔ اس لیے پرائم منسٹر، برٹن کی پرائم منسٹر جو بی بی صاحبہ کی آکسفورڈ کی دوست تھی، وہ آج بھی یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے بی بی صاحبہ کی تعریف کر کے پھر اپنی تقریر شروع کرتی ہیں۔ الحمدللہ وہ آپ کی قائد تھی، میری قائد تھی، سب کی قائد تھی، اور ان کی یادیں جب بھی ایسا دن آتا ہے جیسا آج ہے، 50 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئے، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر آج وہ ہم میں ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی، کتنی ان کی خوشی ہوتی اگر وہ بلاول کو دیکھتی آپ میں اور اسے سمجھتی کہ بلاول آگے آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا ڈکٹیٹرز کو کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے، آپ پاسٹ ضرور ہے، پریزنٹ ضرور ہے، آپ کا فیوچر نہیں ہے۔ مشرف نے یہ دیکھا کہ اس کا فیوچر نہیں ہے، اب وہ چھپ کے ایک ملک میں بیٹھا ہے، واپس نہیں آ سکتا، سیاست کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، بس سیاست اپنے سپر ہائی وے پہ چڑھ چکی ہے اور وہ نہیں بدلتی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہوگا ووٹ کے ذریعے، جب بھی ہونا ہے ہوگا ووٹ کے ذریعے۔ تو دوستو، یہ بھی پیپلز پارٹی کی، بھٹو صاحب کی کی ہوئی خدمات ہیں، جس خدمت سے آپ کو، مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو یہ ملا ہوا ہے، یہ تحفہ ملا ہوا ہے جمہوریت کا، اور یہ جمہوریت کا تحفہ ہم نے تو گڑی خدا بخش میں دفن ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا ہے، مگر آپ کے پاس بلال اور آصفہ چھوڑ کے جانی ہے۔ میں
रखता हूं कि हमारे जाने के बाद आप बीवी के और मेरे बच्चों को उतनी ही वफा करेंगे, उनके साथ उतनी ही वफा करेंगे जो बीवी के साथ और मेरे साथ आपने की है। 11 साल जब हम जेल में होते थे तो मेरे पिंडी का काजी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो आया करता था, वर्कर आए करते थे, जमरुद खान आया करता था। ये मेरे वर्कर आते थे मुझसे मिलने, बड़े बड़े लोग थोड़े घबराते थे मगर वर्कर ज़रूर आता था। और आज भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप वर्करों की वजह से हम सब बैठे हैं। वर्कर है तो सब कुछ है, अवाम है तो सब कुछ है। अगर अवाम नहीं तो फिर कुर्सी के साथ ही ये जाने वाले जो हैं ये कुर्सी अपनी साथ लेके जाते हैं और साथ लेके आते हैं। बड़ी मुल्क में और दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा वक्त लूं, मगर मैं आपको आगाह ज़रूर कर देना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। उस गॉडफादर ने और इसको, ये जाली खान को बात समझ नहीं आ रही कि ये किस बात पे, किस आपके पास कुछ होगा तो आप लोगों को दोगे, अवाम के साथ दोगे। हम कुछ छोड़ के गए थे तो ये अवाम को दे सके थे, अगर हम ना छोड़ के जाते तो ये कुछ नहीं दे के जाते थे। हमने जिस हिसाब से हमने संभाला, जिस जगह पे हमने इकॉनमी संभाली और जिस हिसाब से इनको हमने इकॉनमी दी, और वो भी एक जाली मैंडेट पे, मगर जमहूरियत की खातिर हमने दी। हमने 2 दफ़ा इनकी जमहूरियत बचाई है। एक दफ़ा जब ये जाली मैंडेट लेके आए, दूसरी दफ़ा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था। मगर अब हम इनकी जमहूरियत नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। हम अपनी जमहूरियत लाएंगे, लाएंगे, लाएंगे। अब हम इनसे लड़ेंगे भी, अब हम इनसे मुकाबला भी करेंगे, इसलिए कि ये हमें सियासत का या हमें पावर की भूख नहीं है। हमें अफसोस ये हो रहा है जो मेरे मुल्क के साथ हो रहा है। जो मेरे मुल्क के साथ हो रहा है वो मुझे पता है कि आज ये कह रहा है कि डॉलर, एक $4 बिलियन डाल के डॉलर में इसने डॉलर को इस पे खड़ा किया हुआ है। असल डॉलर की कीमत 127 हो चुकी है और इनको समझ नहीं आ रही बात। इनको छुपाते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उठाए सारा वजन, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट तक चले। ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले ये आज हार मान लें। हमारी कोशिश ये होगी कि ये उनसे पहले ही हार माने और ये पहले ही पावर छोड़ें, ताकि हम कुछ आके, कुछ चल के, कुछ समझ के मुल्क को संभाल सकें, उसको चला सकें। मेरे दोस्तों, पूरा एक खजाना भरा हुआ है मेरे दिल में, मेरे जिस्म में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बीबी साहिबा का। और मुझे नहीं समझ आती कि मैं गड़ी खुदा बख्श से शुरू करूं या मैं हाला से शुरू करूं, जहां से भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी का हिस्सा रखा, या उस दिन से शुरू करूं जब उनने 10 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर लेके उनने न्यूक्लियर फैसिलिटी खोल दी पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में।
उस वक्त भुट्टो साहब साइंस और टेक्नोलॉजीज के मिनिस्टर थे, वो उस दिन सोच रहे थे कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूक्लियर स्टेट है, और इसी वजह हमको इंडिया नेपाल नहीं बना सकता, हमसे कश्मीर नहीं तोड़ सकता, हम कश्मीर नहीं देंगे। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना, सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी, आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी। हाँ, हम अफगानिस्तान से अच्छे रास्ते चाहते हैं, उनसे हम वास्ता बढ़ाना चाहता है। वो कौमी लोग हैं, हम भी कौमी लोग हैं, हमारे पुराने उनसे मरासिम हैं, वो मरासिम हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगान हमारे दोस्त हों, हमारी बात समझें, और ये समझें कि सिर्फ वो मुश्किल में नहीं हैं, हम भी मुश्किल में हैं। तो आए वो और हम साथ मिलके पाकिस्तान की सरहदों को, उनकी सरहदों को मजबूत करें। हम चाहते हैं कि उनकी सरहदें मजबूत हों, हम चाहते हैं कि वो तरक्की पसंद बने, हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें, उनको टेररिज्म से हम बचाएं। हम अपने तरफ से, हम अपनी पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उनको हर एश्योरेंस दिलाना चाह रहे हैं कि आप हम में शक मत रखें, हम खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं, हमने टेररिज्म में अपनी पार्टी के वर्कर गवाए हैं, हमने अपनी शहीदा गवाई है, बीबी गवाई है, हम इन टेररिस्ट के साथ नहीं हैं। ये हमारे भी उतने ही दुश्मन हैं जितने आपके दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये आपके दुश्मन हैं। आए आप और हम दोनों मिलके इनको रोकें, इनको संभालें, इनको समझाएं, इनसे जहां लड़ना पड़े वहां हम लड़ें, तो हम पाकिस्तान को और आपको दोनों को इन मुश्किलों में से निकाल सकते हैं। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, सुन लो इंडिया वालों, सुन लो कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बच्चा जिंदा है, तब तक कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारी शाहरग है, और हम कश्मीर पे ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना हम आपको लेने देंगे। अगर हमें खुद भी इस बात पे लड़ना पड़ा, अकेले होके लड़ना पड़ा, तो भी हम लड़ेंगे, मगर पाकिस्तान में हम इनको नहीं आगे बढ़ने देंगे। जहाँ तक सवाल है फ्यूचर इकोनॉमी का, हमारी फ्यूचर इकोनॉमी, पाकिस्तान का फ्यूचर, वो सारा पूरा पानी और डिपेंड करता है कि हम कितना जमींदारे के तरफ, कितना हारियों का हम ख्याल रख सकते हैं, कितना हम गरीबों का ख्याल रख सकते हैं। वहाँ से हमारी ताकत आती है, ताकत पाकिस्तान की इकोनॉमी की वहाँ से आती है। तो ये आप सोचें कि ये लोहार को समझ नहीं है और वो पटवारी को भी समझ नहीं है, उनने कभी 1 एकड़ के पर ना हारपा किया है ना जमींदारी की है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि अगर गंदम अपनी हो, अगर शुगर अपनी हो, और अगर हम पास कपास अपनी हो, तो उसको अगर हम रुपीस में हम अगर उनको दे भी दें, अगर हम रुपए में उनको स्टाइपेंड दे भी दें, उनको हम कुछ मवाद भी दे दें, तो भी हमारा एक्सपोर्ट आइटम है, हमें डॉलर में उसकी पेमेंट मिलती है। तो ये मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में हमारी ये सोच है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा, ज़मींदारों की मदद की जाएगी, गरीबों की मदद की जाएगी, हारियों की मदद की जाएगी, और लेबर के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में हमेशा लेबर का एक हिस्सा रहा है, आइंदा भी लेबर का हिस्सा रहेगा। तो मैं सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि वो इस
पे उम्मीद पे रखें और हमेशा उम्मीद में रहें। हम ना उम्मीद कभी नहीं हुए। 11 साल जब जेल में होते थे तब भी ना उम्मीद नहीं होते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको करके दिखाया है। अब तो ये भी एनालिसिस बैठते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कुछ किया। पहले तो ये मानते नहीं थे, अब तो ये मानते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मानते हैं, बीबी को भी मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी मानते हैं। ये उनकी बड़ी बात है। दोस्तों, मैं हर उस मुकाम पे दोस्तों मैं हर उस मुकाम पे गया हूँ बीवी के साथ साथ जहाँ भुट्टो साहब गए। तो दोस्तों ने भुट्टो साहब से मुलाकात की, उनके साथ काम किया। मैंने भुट्टो साहब को महसूस किया। मैंने महसूस किया इसलिए कि मैं उस खोली में रहा जहाँ भुट्टो साहब रहे थे। मैंने वहाँ के पुलिस वालों से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सब बातें मेरे दिल में और मेरे खुमार में थी। जब मैं प्रेसिडेंट बना मुझे पता था कि हमने पावर पार्लियामेंट को देनी है, वरना आज पार्लियामेंट्री हुकूमत नहीं होती। आज नवाज शरीफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ हुकूमत चलाता और उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब पार्लियामेंट अकाउंटेबल है। मैं जजों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्लियामेंट में होगा वो अकाउंटेबल है। जो भी पार्लियामेंटेरियन है, मैं हूँ कोई और है, वो अकाउंटेबल है। और आज के बाद से अभी हम अकाउंटेबल हैं, कल हमारी आने वाली जनरेशन्स अकाउंटेबल होंगी, कल आपकी पूरी पार्लियामेंट अकाउंटेबल होगी। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरह मुल्क संवरते हैं, इसी तरह मुल्क बनते हैं। और अभी पाकिस्तान को तो कुछ अरसा ही नहीं हुआ बने हुए, तो लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मैं उसको ताकत समझता हूँ, लोग उसको कमज़ोरी समझते हैं। तो हम हर सोच पे, हर बात पे उनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि हर चीज़ को हम ताकत में बदल सकते हैं। हमने बदला है और हम आइंदा भी बदलेंगे इंशाअल्लाह। अवाम की ताकत को भी हम बदलेंगे, वोट में बदलेंगे, हम रोड में बदलेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है, क्या रही है और क्या करके दिखाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, काफ़ी दोस्त हमारे यहाँ पहुँच नहीं सके, वो अभी तक मजमा बेचारा बाहर छुपा हुआ है, बाहर रुके हुए हैं। कुछ दोस्त हमारे फंसे हुए हैं। मैं उन दोस्तों को भी मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका आना जो है वो भी कबूल करता हूँ। हमें पता है कौन कौन नहीं पहुँच सका और कौन पहुँच गया और कहाँ कौन का काफिला कहाँ रुका हुआ है। जितने लोग आपको अंदर नज़र आ रहे हैं इतने ही बाहर हैं। मैं उन सबको भी प्यार भेजता हूँ, चाहे वो मुझे देख सके या ना देख सके। तो मेरे दोस्तों, आपके प्यार के साथ, आपकी दुआओं के साथ मैं आपको बिलावल आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह आपका और उनका हामी नासिर हो। जिए भुट्टो। खतरों का खिलाड़ी जरदारी, खतरों का खिलाड़ी जरदारी। डीजे बादशाह
खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी शहरग है। हमने 2 बार सिर्फ जमहूरियत के लिए उनकी हुकूमत बचाई, अब किसी हुकूमत को नहीं बचाएंगे, हम अपनी जमहूरियत लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ से बदलने की कोशिश कर रहा है मगर कुछ होगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। डिक्टेटरों से हमेशा कहा है कि आपका मुस्तकबिल नहीं है, जो कुछ होना है वोट के ज़रिए ही होना है। हमारे तमाम शोहदा हमें आज देख रहे हैं, वो हमें सुन सकते हैं। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच, उन्होंने कहा कि जो भी अदालती फ़ैसले होंगे उस पर हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन जो करप्ट अनासिर हैं हम उनको नहीं बचाएंगे, हम अपनी जमहूरियत लाएंगे। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गोल्डन जुबली जलसा कर रही है इस्लामाबाद में, और अब से कुछ देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मेरी कोशिश होगी कि अबूरी हुकूमत से पहले ये हार मान जाएं, यानी कि मौजूदा हुकूमत को अबूरी हुकूमत की मुद्दत आने से पहले ही उनको यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी रहा है, आज आसिफ अली जरदारी ने उसको फिर दोहरा दिया। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी शहरग है। हमने 2 बार सिर्फ जमहूरियत के लिए उनकी हुकूमत बचाई, लेकिन अब अपनी जमहूरियत लाएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से हमें ख़बर है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर तब्दीली हो।